सॉफ्टवेयर मेजरमेंट। दो तरह का मैट्रिक्स हम लोग पढ़ते हैं, एक होगा साइज ओरिएंटेड मैट्रिक, दूसरा होगा फंक्शन ओरिएंटेड मैट्रिक। ठीक है, इन दोनों के कैलकुलेशन में हम लोग दो तरह के मेजर्स लेते हैं। मेजर क्या है और मेजरमेंट क्या है? मेजरमेंट इज द एक्ट ऑफ डिटरमाइनिंग मेजर्स, और मेजर क्या है? मेजर गिव्स द quantitative indication. Measure gives the quantitative indication to the extent, amount, capacity or size of some attribute of a product or a process, है ना। किसी भी प्रोडक्ट के या किसी भी प्रोसेस का के डिफरेंट एट्रीब्यूट्स का वो क्या बताता है? एक एक्सटेंट बताता है। जैसे हाइट है, कितना हाइट है, ये मेज़र हुआ, 5 फीट मेज़र हुआ, ठीक है। लेंथ है या टेम्परेचर है 40 डिग्री सेल्सियस, तो टेम्परेचर का एक्सटेंट क्या है? 40 डिग्री। सो दीज आर मेजर्स। तो इन दोनों मैट्रिक्स के कैलकुलेशन में हम लोग डिफरेंट मेजर्स को यूज़ करेंगे, और ये मेजर्स दो तरीके से ऑब्टेन किया जाता है, दो तरीके से लिया जाता है। एक होता है डायरेक्ट मेज़र, दूसरा होता है इनडायरेक्ट मेज़र। डायरेक्ट मेज़र मीन्स the measure that we can directly calculate, such as length, width, height, है ना, cost, effort, LOC, line of codes, memory size, है ना, execution speed, total number of persons in a project, total number of days in within which the software has been developed, या total number of pages of documentation. These are direct measures. Now indirect measures are those measures that cannot be directly calculated that are calculated derived through some other direct measures, right? जैसे efficiency of a computer, और quality, और complexity, और reliability, maintainability, performance, ये सारे ऐसे प्रॉपर्टीज़ हैं किसी भी प्रोसेस का या प्रोडक्ट का जिसको हम लोग डायरेक्टली मेज़र नहीं करते हैं, बट दीज आर ऑब्टेन्ड ऑफ कोर्स थ्रू डायरेक्ट मेजर्स। दीज आर नॉट डायरेक्टली ऑब्टेन्ड, देयरफॉर दीज आर इनडायरेक्ट मेजर्स। ठीक है, डायरेक्ट मेजर्स आर दोज दैट आर डायरेक्टली कैलकुलेटेड with the help of certain tools, or indirect measures are derived from the direct measures, calculated from the direct measures. Clear? तो इसमें हम लोग दो तरह का जो मेट्रिक पढ़ते हैं, उसमें एक होता है साइज ओरिएंटेड मेट्रिक, साइज ओरिएंटेड मेट्रिक, और इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज LOC बेस्ड मेट्रिक, LOC बेस्ड मेट्रिक। ठीक है, एंड द सेकेंड वन इज फंक्शन ओरिएंटेड मेट्रिक, फंक्शन ओरिएंटेड मेट्रिक। दिख रहा है? So where do we use size oriented metric and where do we use function oriented metric, right? We know we have two types of programming languages. One is procedural and another one is non-procedural. Non-procedural, procedural languages are C, COBOL, Fortran, etc. है ना। Non-procedural, Java, object-based languages, right? So in case of procedural languages, we use size-oriented metric, and in case of object-oriented technology, object-oriented languages, that is non-procedural languages, we use function-oriented metric. Why we have taken function-oriented metric for object-oriented technology? Because in function-oriented metric, we use number of objects or number of components that are pre-developed
or that could be hired from others, that could be used after certain minute modifications. So if these components or modules or objects are included in the current software that has been hired from some other software, the length of those objects could not be included. The cost spent on that module or that function or that object cannot be included in the current software. उसको हम इसमें शामिल नहीं कर सकते क्योंकि इसको कभी किसी और दौर में बनाया गया, उसका LOC कुछ और होगा. It is giving certain impact in the current software. तो वहाँ पर हम LOC काउंट करके डिफरेंट जो एट्रीब्यूट्स हैं उनको हम कैलकुलेट नहीं कर सकते इसकी सहायता से. जैसे कॉस्ट नहीं कैलकुलेट कर सकते, टाइम कैलकुलेट नहीं कर सकते, है ना. तो एफर्ट ये कैलकुलेट नहीं कर सकते LOC बेस्ड. तो इसलिए एक दूसरा अल्ब्रेक्ट ने प्रपोज किया कि बेटर वी शुड टेक द फंक्शनैलिटीज डिलीवर्ड बाय द सॉफ्टवेयर, and on that functionality we should estimate the software. We can get the measurement based upon the functionalities delivered by the software, right? अब इसको डिटेल में फिर पढ़ेंगे. Now size oriented metric. Size oriented metric means कि everything is calculated in line of codes. LOC means line of codes. जैसे total number of LOC developed per day, average number of LOC developed per day. Say this is a size oriented metric. ये दिख रहा है, ये टेबल दिख रहा है. Is it visible? So this is size oriented metric. Now you can see here one column is project, means name of the project. Second one is LOC, total number of LOC in that project. Third one is effort. Next cost in dollar, यहाँ डॉलर में दिया है. pp.doc, इसका मतलब है number of pages of documentation. And this one is the total number of errors. This is defects. And then total number of people worked on a particular project. Now in this example there are three projects: alpha, beta and gamma. So if we see here, the alpha project has consumed 12,100 lines. 12,100 lines have been spent for alpha project. And what is the effort? 24. Cost $168. Total number of pages 365. Total number of errors 134. Total number of defects 29. And how many people worked on this project? 3. Right? Another project is beta. इसका साइज कितना है? 27,200. एफर्ट कितना हुआ? 62. कॉस्ट कितना हुआ? $440. ऐसे ही पेजेस ऑफ डॉक्यूमेंटेशन कितना है? 1224. एरर्स कितना हुआ? 321. डिफेक्ट्स कितना है? 86. कितने लोग काम किए? 5. ठीक है. उसी तरह से तीसरा प्रोजेक्ट है गामा. तो इसमें एस्टिमेशन का आधार हमारा क्या होता है? एस्टिमेशन का आधार होगा नंबर ऑफ एरर्स पर KLOC. के क्या हुआ? 1000. now total number of errors per KLOC. total number of defects per KLOC. number of days per module. average number of days per module, है ना. डॉलर या रुपीज़, हम लोग के यहाँ तो रुपीज़ है. रुपीज़ पर LOC. एक LOC डेवलप करने में, लिखने में कितना कॉस्ट लगा? 5 रुपया, 10 रुपया, 20 रुपया, 100 रुपया. उसी तरह से पेजेस ऑफ डॉक्यूमेंटेशन, ये मेजर का आधार है, यूनिट से. पेजेस ऑफ डॉक्यूमेंटेशन पर KLOC, है ना. पर KLOC 1000 LOC लिखेंगे तो उसके लिए कितने पेजेस का डॉक्यूमेंटेशन होगा? ठीक है. या ये भी होता है एरर्स पर पर्सन मंथ. एरर्स पर पर्सन मंथ.
या LOC पर पर्सन मंथ, एक आदमी एक महीने तक काम करेगा तो कितना LOC डेवलप करेगा, या डॉलर या रुपीस पर पेज ऑफ डॉक्यूमेंटेशन, एक पेज के डॉक्यूमेंटेशन में कितना खर्चा हो रहा है पर पेज ऑफ डॉक्यूमेंटेशन. सो इन दिस वे वी कैन एस्टिमेट, वी कैन गेट द मेजर्स, है ना. और इस मेट्रिक के बेसिस पर हम ये असेसमेंट कर सकते हैं कि इसमें अल्फ़ा प्रोजेक्ट अच्छा है या बीटा प्रोजेक्ट अच्छा है या गामा प्रोजेक्ट अच्छा है. डिफरेंट एंगल से हम सोच सकते हैं कि जैसे एक है अल्फ़ा प्रोजेक्ट 12,100 LOC का है, उसमें 3 आदमी काम किया और टोटल नंबर ऑफ एरर्स कितना हुआ 134. ठीक है. दूसरा प्रोजेक्ट है बीटा, तो बीटा प्रोजेक्ट 27,200 LOC का है, इसमें 5 आदमी काम किया. तो इस तरह से कॉस्ट भी हम देख सकते हैं. तो इसमें नंबर ऑफ डेज नहीं लिखा हुआ, नंबर ऑफ डेज भी रहता है, 280 डेज, 380 डेज, 340 डेज, कितने दिनों में बना. गामा प्रोजेक्ट है 20,200 LOC का है, उसमें एफर्ट लगा 43, डॉलर खर्च हुआ 314, पेजेज ऑफ डॉक्यूमेंटेशन कितना है 1050, एरर्स कितना हुआ 256, डिफेक्ट्स कितना हुआ 64, पीपल कितने काम किए 6. ठीक है. तो इन सब में अगर डिफेक्ट के बाद में ठीक है, तो अल्फ़ा में 29 डिफेक्ट है. ठीक है. और बीटा में 86 डिफेक्ट है. और तकरीबन ये 2 गुना साइज का है. 12,100 LOC है, दूसरा 27,200 LOC है, तो 2 गुना से थोड़ा ज़्यादा में नहीं, दोनों का हल कर लिया. तो ये हो गया साइज मेट्रिक. राइट.